Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 48 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 21 slot 3 paper and the set says, 3 reviewers, Amal, Bimal and Komal are tasked with selecting questions from a pool of 13 questions, question number 1 to question number 13. Questions can be created by external subject matter experts, SMEs, or by one of the 3 reviewers. Each of the reviewers either approves or disapproves a question that is shown to them. Their decisions lead to eventual acceptance or rejection of the questions in the manner described below. If a question is created by SME, it is reviewed first by Amal and then by Bimal. If both of them approves the question, then the question is accepted and is not reviewed by Komal. If both disapproves the question, it is rejected and it is not reviewed by Komal. If one of them approves the question and the other disapproves it, then the question is reviewed by Komal. Then the question is accepted only if she approves it. A question created by one of the reviewers is decided upon by the other two. If a question is created by Amal, then it is first reviewed by Bimal. If Bimal approves the question, then it is accepted. Otherwise, it is reviewed by Komal. The question is then accepted only if Komal approves it. A similar process is followed for questions created by Bimal, whose questions are first reviewed by Komal and then by Amal. Only if Komal disapproves it. Question created by Komal are first reviewed by Amal and then if required, by Bimal. The following facts are known about the review process after its completion. Question number 2, 6, 9, 11, 12 were rejected and the other question were accepted. Amal reviewed only question number 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 and 13. Bimal reviewed only question number 2, 4, 6, 9, 10, 13. Komal reviewed only question number 1 through 5, 7, 8, 9, 11 and 12. एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय अमल, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय कोमल, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय एसएमईज, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बिमल. The approval ratio of the reviewer is the ratio of the number of questions he approved to the number of questions he reviewed. Which option best describes the Amal's approval ratio? How many questions created by Amal or Bimal were disapproved by at least one of the other reviewers? ठीक है. अगेन एक स्टैंडर्ड पजल का सेट जिसपे कि अपने को क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसने क्यूरेट करा और किसने अप्रूव या डिसअप्रूव करा है, मतलब बेसिकली किसने रिव्यू करा है. फॉर दैट दे हैव गिवन अ सर्टेन रूल्स. अब उन रूल के बेसिस पे वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई. इसमें रूल में पहला लिखा हुआ है कि क्वेश्चन को क्यूरेट कौन कर सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कर सकता है. उस केस में क्या होगा, पहले ए के पास भेजा जाएगा, फिर बी के पास भेजा जाएगा और फिर ज़रूरत पड़ी तो के पास भेजा जाएगा. यानी कि अगर ए ने अप्रूव कर दिया तो बी के पास जाएगा. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ ना कि इफ़ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन तो के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर इन दोनों में से अगर ए ने रिजेक्ट मारा तो बी के पास फिर के पास. इफ अ क्वेश्चन इट इज़ फर्स्ट रिव्यूड बाय अमल एंड देन बाय बिमल, इफ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड एंड इज रिव्यूड बाय कोमल एंड इज नॉट रिव्यूड बाय कोमल. इफ बोथ डिसअप्रूव, अगर दोनों को डिसअप्रूव कर देते तो इट इज रिजेक्टेड और कोमल को रिव्यू करने के लिए दिया ही नहीं जाता है. इफ वन ऑफ देम अप्रूव्स द क्वेश्चन एंड अदर डिसअप्रूव्स इट देन इट गोज टू द कोमल. अगर मान लो ए ने कर दिया, बी ने डिसअप्रूव करा तो के पास जाएगा. यहाँ ए ने डिसअप्रूव करा फिर बी के पास गया, बी ने अप्रूव कर दिया तो के पास जाएगा. ऐसा कुछ होने वाला है. ठीक है, इसके उल्टा एक और केस दिया हुआ जिसमें कह रहा है कि भाई इस एसएमई के अलावा इन तीनों में से कोई एक बना सकता है. ये जो रिव्यूअर है उनमें से कोई एक बना सकता है, ए, बी और के में से भी कोई बना सकता है. उस केस में क्या होगा, अगर ए क्वेश्चन बनाता है देन इट इज फर्स्ट रिव्यूड बाय बिमल. अगर बिमल ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोमल जाएगा उसको रिव्यू करने के लिए. सिमिलरली अगर इफ इट इज क्यूरेटेड बाय बिमल, सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड इफ द क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय बिमल हुज क्वेश्चन इज फर्स्ट रिव्यूड बाय कोमल. इस केस में पहले कौन कर रहा है, कोमल कर रहा है. एंड देन इट इज गिवन टू ए अगर कोमल ने रिजेक्ट मारा. और कोमल के लिए दिया हुआ है कि अगर ये ऐसा होता है देन इन दैट केस इट इज फर्स्ट रिव्यूड बाय ए एंड देन बी. ठीक है, अपने को ये रूल आइडेंटिफाई करके दे दिया इसने. एक रूल डिफाइन करके और बोला कि भैया आपको इसी रूल के बेसिस पे यू आर सपोज टू आंसर दी गिवन क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट आई हैव डन, आई क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल. अब टेबल में मैंने क्या करा, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक का दे दिया है. एंड इसके साथ साथ अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसको मैं प्लग इन करने वाला हूँ एंड उसके बेसिस पे आई ट्राई टू फिगर आउट यूजिंग दी रूल्स विच इज गिवन. ठीक है, जैसे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है 2, 6, 9, 11 एंड 12 वर रिजेक्टेड बाई दी वर रिजेक्टेड एंड अदर क्वेश्चन वर एक्सेप्टेड. ठीक है, 2 रिजेक्टेड, 6 रिजेक्टेड, 9 रिजेक्टेड, 11 रिजेक्टेड, 12 रिजेक्टेड. पॉइंट नंबर 1 डन. पॉइंट नंबर 2, अमर रिव्यूड ओनली क्वेश्चन नंबर 2. अमन ने केवल क्वेश्चन नंबर 2 को रिव्यू करा है. अमन ने क्वेश्चन नंबर 3 को रिव्यू करा है, क्वेश्चन नंबर 4 को करा है, क्वेश्चन नंबर 6 को करा है,
8, 10, 11, 13, 8, 10, 11 और 13, टोटल 8 क्वेश्चन को हमने ले रिव्यू करा है। ठीक, डन। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन इसने रिव्यू करा है। बिमल रिव्यूड ओनली क्वेश्चन नंबर 2 4 6, बिमल रिव्यूड ओनली क्वेश्चन नंबर 2 4 6 थ्रू 9, अच्छा मतलब 9 तक जाना है अपने को ना, तो ठीक, मतलब बेसिकली 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे भी 7 को भी कर लेते हैं, ठीक है। बिमल रिव्यूड ओनली क्वेश्चन नंबर 2 4 6 थ्रू 9 12 एंड 13, ठीक है, 12 और 13 को भी रिव्यू कर दिया भाई साहब ने, ठीक। पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4, कोमल रिव्यूड ओनली क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 5, अच्छा कोमल ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 5 7 8 9, 7 8 और 9, 7 8 9 11 एंड 12, 11 एंड, ठीक है। कोमल रिव्यूड ओनली क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 5, 1 2 3 4 5 7 8 7 8 9 11 एंड 12, 9 11 और 12, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 भी डन। अब क्या करा जाए, अब अपने को यहाँ पे क्रिएटर का निकालना पड़ेगा कि किसने क्रिएट करा है। कैसे निकालेंगे, यूजिंग दी रूल्स, जो अपने को रूल्स डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पढ़ा क्या है कि वो अप्रूव हो गया था और के ने करा था, ठीक है, खाली के कर रहा है, तो कौन किया होगा, बी की वजह से वो होगा, यहाँ पे बी ने बनाया होगा और के ने एक बार में अप्रूव कर दिया, बिकॉज यहाँ पे रूल क्या है, के अगर अप्रूव कर देगा तो अप्रूव हो गया क्वेश्चन, अगर के रिजेक्ट मारता तो फिर ए के पास जाता, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बी ने बनाया जिसमें कि के ने अप्रूव कर दिया, ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 2 वाज रिजेक्टेड एंड इट वाज रिव्यूड बाय ए बी के तीनों कब करते हैं, जब ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने बनाया होगा। अब इसमें भी के ने रिजेक्ट मारा होगा और ए और बी में से किसी एक ने अप्रूव करा होगा, किसी एक ने रिजेक्ट मारा होगा, बिकॉज रूल्स यही थे ना कि ए और बी में से कोई एक, अगर दोनों एक्सेप्ट कर देते तो के पास नहीं आता, दोनों रिजेक्ट कर देते तो के पास नहीं आता, क्योंकि के पास मूव किया है, मतलब इन दोनों में से किसी एक ने एक्सेप्ट करा, मतलब किसी एक ने अप्रूव करा था, किसी एक ने रिजेक्ट मारा था, एंड देन फर्दर इट वाज गिवन टू के, जो कि उसने फिर रिजेक्ट मार दिया, जिसकी वजह से अपने को पता कि क्वेश्चन नंबर 2 वाज रिजेक्टेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इट वाज रिव्यूड बाय ए एंड के, ए एंड के, ए एंड के, ए एंड के का मतलब यहाँ पे के और ए की वजह से हुआ होगा, ठीक है, मतलब इट वाज बाय क्वेश्चन, ये बी रहा होगा, यानी कि बी ने इस क्वेश्चन को क्रिएट करा होगा। ऑल्सो क्योंकि ये ऑर्डर में, बिकॉज यहाँ तो हमने बस ऐसे लिख दिया था ना, ये ऑर्डर में नहीं था, तो पहले किसने किया होगा, के ने क्या करा होगा, रिजेक्ट, और ए ने फिर इसको अप्रूव करा होगा, जिसकी वजह से फाइनली दैट क्वेश्चन गॉट अप्रूव्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 वाज नॉट रिजेक्टेड, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा था ना जितने क्वेश्चन रिजेक्टेड थे, देखो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी के, अगेन वही लॉजिक, अपने को यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने बनाया होगा, जिसमें से के ने एक्सेप्ट करा, यहाँ पे के ने अप्रूव करा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अप्रूव, यहाँ पे के ने अप्रूव करा और इन दोनों में से किसी एक ने अप्रूव करा और किसी एक ने रिजेक्ट मारा है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 वाज अप्रूव्ड एंड इट वाज डन बाय ओनली के, तो यानी कि ये बी करा होगा, तो के ने अप्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 इट वाज डन बाय ए कॉमा बी, यार यहाँ पे देखो दो केसेस में दिख रहा है, एक तो हो सकता है एस वाला केस, एक हो सकता है ये वाला केस, ठीक है, तो यानी कि ये एस वाला भी हो सकता है और ये के वाला भी हो सकता है। अगर ये एस वाला है तो मतलब दोनों ने ही रिजेक्ट मारा, और के वाला है तब भी दोनों ने रिजेक्ट मारा। क्यों, दोनों पे समझाता हूं। अगर ये एस है, ठीक है, एस वाले में दोनों ने रिजेक्ट मार दिया, दैट इज व्हाई इट गॉट रिजेक्टेड। और अगर के वाला है तो के वाले में क्या होगा, पहले ए को रिव्यू करने के लिए दिया गया, उसने रिजेक्ट मारा, फिर बी को दिया गया, उसने भी रिजेक्ट मारा, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन गॉट रिजेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ रिजेक्टेड, ठीक। तो इन दोनों ही केसेस में हमें ये तो पता चल रहा है कि दोनों ने डिसअप्रूव करा, यानी कि दोनों ने रिजेक्ट करा है। हाँ, ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्रिएट किसने करा, या तो इसने करा या तो के ने करा है, ठीक। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इट वाज बी कॉमा के, यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है कि ए वाला केस है, यानी कि यहाँ पे ए ने बनाया होगा, जिसमें से बी ने प्राइमा फेसी भैया कहा कि भाई हमें ये क्वेश्चन समझ है, रिजेक्ट, एंड के ने अप्रूव करा। क्वेश्चन नंबर 8 इट वाज अप्रूव्ड, तो ये एस ने बनाया होगा, जिसमें से के ने अप्रूव करा होगा, और इन दोनों में से किसी एक ने अप्रूव करा और किसी एक ने रिजेक्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 9 इट वाज रिजेक्टेड एंड इट वाज डन बाय बी कॉमा के का मतलब ये ए वाले ने करा होगा, एंड इट वाज रिजेक्टेड बाय बोथ द पीपल। पहले बी ने रिजेक्ट मारा विच वाज गिवन टू रिव्यू, मतलब सेकंड प्रोसेस का रिव्यू के लिए के को दिया गया, के ने फिर रिजेक्ट मार दिया। क्वेश्चन नंबर 10 ए ने रिव्यू करा और ए अकेले ए ने करा, तो मतलब कुछ ऐसा, ठीक, डन।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉमा के एंड इट वाज रिजेक्टेड, ए कॉमा के रिजेक्टेड, ये तब पॉसिबल है ए कॉमा के यानी कि के कॉमा ए वाले में, यानी कि इट वाज डन बाय क्वेश्चन नंबर सॉरी मतलब क्रिएटर नंबर बी एंड पहला इसने करा रिजेक्टेड और फिर ए ने भी रिजेक्ट मार दिया, दैट इज वाई ओवरऑल ये रिजेक्शन पे चला गया। क्वेश्चन नंबर 12, बी कॉमा के एंड रिजेक्टेड, तो अगेन ए ने बनाया होगा और दोनों ने ही रिजेक्ट मार दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉमा बी एंड इट वाज एक्सेप्टेड, ए कॉमा बी इट वाज एक्सेप्टेड, तो ऐसा हो सकता है कि या तो एस नहीं या तो के नहीं, अगेन इसके बारे में भी अपन कुछ नहीं कह सकते, एस कॉमा के, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई एस ने और एस ने क्या करा, ए और बी ने मतलब दोनों ने अप्रूव कर दिया, दैट इज वाई गॉट अप्रूव्ड, और के वाले केस का होगा तो यानी कि ए और बी में से किसी एक ने, मतलब दोनों ही केसेस में वी कैन कंक्लूड कि बी ने अप्रूव तो करा है, बट फॉर ए वी आर नॉट श्योर अप्रूव करा है कि नहीं करा है, क्योंकि अगर मान लो एस वाला केस है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसने दोनों ने अप्रूव करा ही करा है, अगर के वाला केस है तो ऐसा होगा कि ए ने रिजेक्ट करा होगा और बी ने अप्रूव किया होगा, देन ओनली विल बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा यार ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है। ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, मैंने ये तो फिगर आउट कर लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गई, ठीक है। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय ए, डेफिनेटली यानी कि ए ने देखो एक यहाँ पे करा हुआ है एक, ठीक है, 2 और 3, यानी कि ये डेफिनेटली वाले हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे जो कि ए ने डेफिनेटली किए ही किए हैं, ठीक। सो पहले का आंसर क्या होना चाहिए 3। हाउ मेनी क्वेश्चन आर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय के, डेफिनेटली पूछा हुआ है, के ने डेफिनेटली देखो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है जो कि भाई साहब ने या बहन जी ने जो भी है कोमल ने करा था, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय एसएमई, एसएमई का 1 2 नहीं पता, 3 नहीं पता, यानी कि अगेन आंसर शुड बी 3 फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे टेबल फिल कर लिया तो अपने को साफ साफ आंसर दिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी क्वेश्चन आर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय विमल, डिसअप्रूव्ड एंड डेफिनेटली बोला हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली में बी का पहले देखे कहाँ पे आया हुआ है, देखो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, इधर नहीं पता, 1 यहाँ पे मिल रहा है, 2 ठीक है, 3 4, ठीक है, 4 इवेंट अपने को साफ साफ दिख रहे हैं कि भैया यहाँ पे देख रहे हो, तो बी का मैंने क्योंकि साथ साथ में मतलब वो करते गया था ना, मार्क करते गया था, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर डेफिनेटली वर्ड यूज किया ना, इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं करूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये ए और बी में से कौन है, ठीक है। इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द अप्रूवल रेशियो ऑफ अ रिव्यूअर इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन he or she approved to the number of question he or she reviewed, which of the following best describes as the अमल अप्रूवल। तो पहले टोटल आउटकम निकाल लेना, टोटल कितने रिव्यू करे अमल ने, अमल ने कहाँ करे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला तो पता अपने को 8 रिव्यू करे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता नहीं कि अमल ने कितने किए हैं, पॉसिबली कितने किए और फॉर श्योर कितने किए, ये वाले का रेंज लेना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो ए का 1 शायद हो सकता है, 2, ठीक है, मतलब पहले फॉर श्योर वाले निकालते हैं ना, कहाँ पे ए कर ही रहा है, फॉर श्योर द अप्रूवल रेशियो ऑफ द रिव्यूअर इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अप्रूवल, अपने को पहले अप्रूवल वाला निकालते हैं, कहाँ पे अप्रूवल एग्जैक्ट कर ही रहा है, देखो यहाँ पे 1 कर ही रहा है, ठीक है, ये रिजेक्ट मारा हुआ है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इधर भी नहीं करेंगे, 2 कर ही रहा है, ठीक है, 2 इवेंट है जहाँ पे वो कर ही रहा है, यानी कि दिस इज 0.25, ठीक। अच्छा, फिर अपन ऐसा निकाले ऐसे इवेंट जहाँ पे वो मे बी वाला केस भी, बिकॉज अपने को रेंज निकालनी होगी ना, तो दूसरा आ सकता है, देखो यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबली यस, इन दोनों में से कोई एक था ना, तो पॉसिबली यस, 1 2 3, इसको काउंट नहीं करेंगे, 4 5, इसको काउंट नहीं करेंगे, 6, यहाँ पे देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ए वाला अगर के एस वाला केस लेंगे तो रहा होगा, तो 6, यानी कि कितना होना चाहिए 6/8, 6/8 कितना होता है, इट इज 0.75, यानी कि 0.25 से लेके 0.75 के बीच की कोई भी वैल्यू लाइज बिटवीन 0.25 से लेके 0.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी क्वेश्चन क्रिएटेड बाय ए और बी वर डिसअप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स, ऐसे कितने क्वेश्चन है जो ए या बी में से किसी एक ने करा एंड इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स, ठीक है।
सबका चेक करेंगे। देखो बी का तो इधर तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है, ये डिसअप्रूव नहीं था, ये है पहला, ठीक है, नहीं है, दूसरा है, ठीक है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। यानी कि अपने को क्या मिल रहा है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं विच वॉज क्रिएटेड बाई एट मतलब 1 आउट ऑफ ए और बी एंड इट वॉज डिसअप्रूव्ड बाई एनीवन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ देयर। देख सकते हो बिकॉज ये वाला एक ही बंदे ने करा, अप्रूव करा, ये वाला काउंट कर लिया, ठीक है, पहला इधर काउंट कर लिया, इधर काउंट नहीं कर सकते बिकॉज एक ही बंदे ने रिव्यू करा और अप्रूव कर दिया, दूसरा इधर काउंट कर लिया, ठीक है, मतलब इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3, 7, फिर इधर देखते हैं इट वॉज क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि यहाँ पे भी करा, तो 5 ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट सेट, मतलब ईजी भी नहीं है, अगर आपने ऐसा कुछ पहले कर रखा है तो आपके लिए ऑब्वियसली ईजी से मॉडरेट के बीच में बनेगा, बट थोड़ा ट्रिकी था, मतलब एग्जाम वाले फेज में ऐसा सोच पाना, मतलब इतना भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, इसीलिए मैं कहूँगा इसको मॉडरेट तक ही रखूँगा, ठीक है। मतलब आइडियल टाइम वुड बी 12 to 13 मिनट्स या 12 to 15 मिनट्स, इतने बीच में ये आराम से निकला होगा, मतलब 10 से 15 मिनट में वुड बी अ गुड टाइम फॉर एनीवन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।